Hello class 7th. Again I am K. Mishra. Welcome all of you in online classes of science. Class, at present we are studying last chapter of your semester 1 syllabus, that is acids, bases and salt. In this chapter, before today's online class, I have told you, explained you about ions. Ions are of two types, positive ion and negative ion. Of course, positive ions are cations, negative ions are also known as anions. Any salt, कोई भी salt हो, whether it is your kitchen salt, that is sodium chloride, कोई भी salt हो, उसको हम अगर वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो केटायन और एनायन में डिवाइड होता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है. ठीक है. What is ionization? It is an important question given in your book. Ionization थोड़ा सा समझते हैं. सॉल्ट जब डिसइंटीग्रेट होता है, वाटर में ब्रेक होता है सॉल्ट, तो उस प्रोसेस को हम आयनाइजेशन कहते हैं. एक और आंसर इसका हो सकता है फॉर्मेशन ऑफ आयंस by disintegration of any salt in water, that is aqueous medium, is known as ionization. कुछ इक्वेशंस देखते हैं आयनाइजेशन के. बेसिस हों या एसिड्स हों, whether they are bases or acids, acids can break into ions. This ion is known as hydrogen ion. ठीक है. HCl यहाँ पे ब्रेक हो रहा है हाइड्रोजन आयन में और क्लोराइड आयन में. यही हाइड्रोजन आयन फिर ऐड हो जाता है H2O के साथ, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, और बन जाता है H3O ion. This H3O is known as hydronium ion, and this is a character of acid, that acids gives hydronium ion on disintegration, on breaking. ये प्रॉपर्टी है एसिड्स की. एक और एसिड देखते हैं, H2SO4. It is also known as sulfuric acid. This sulfuric acid on disintegration, it gives hydrogen ion to hydrogen ion and sulfate ion, and this hydrogen ion once again combine with H2O and form hydronium ion, H3O+. ठीक है. ये हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है एसिड्स में. ये एक प्रॉपर्टी एसिड के. बेसिस में क्या होता है ये देखते हैं थोड़ा सा. बेसिस में हाइड्रोनियम आयन का नहीं, हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है. हाइड्रोक्साइड आयन इज आल्सो नोन एज हाइड्रोक्सिल आयन. हाइड्रोक्सिल देखते हैं. हाइड्रोक्सिल आयन क्या है? OH- आयन को हम हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं. OH- आयन के बने. फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये बेसिक सोल्यूशन है, बेस है ये जब ब्रेक होता है तो सोडियम आयन बनता है और OH- आयन बनता है, जिसको हम हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं. ठीक है. इतनी बात रही आयनाइजेशन के बारे में, आयंस के बारे में. नाउ कम टू न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन, when we used to mix any acid with base, then there is formation of salt and water takes place. Acids and bases neutralize each other, and formation of salt and water takes place here. देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं. दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl plus NaOH. This is sodium hydroxide. It is very strong base, sodium hydroxide. On combination with hydrochloric acids and sodium hydroxide, sodium chloride is formed and H2O. This sodium chloride is salt. This is common salt, kitchen salt भी इसको कहते हैं, सोडियम क्लोराइड. एक और एग्जांपल देख लेते हैं, H2SO4. ये सारे एग्जांपल्स आपकी बुक में लिखे हुए हैं. आपकी बुक में 10 एग्जांपल्स, 9-10 एग्जांपल्स लिखे हैं. H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड.
क्या बन रहा है यहाँ पे? Na2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4 का फॉर्मेशन हो रहा है और H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सोडियम सल्फेट सॉल्ट यहाँ पे बन रहा है। दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन बिकॉज here bases and acids combine and neutralize the effect of each other. ठीक है, this process is known as neutralization. There are various applications of this neutralization in our daily life. आपकी बुक में ढेर सारे इसके एप्लीकेशन लिखे हैं। कुछ एग्जांपल्स हम पढ़ दे, कुछ एप्लीकेशंस हम पढ़ देते हैं। फॉर एग्जांपल, इन एग्रीकल्चर सेक्टर, sometimes due to acidic rain or due to excess fertilizer, the soil become acidic in nature, which can damage crops. The farmer reduce acidity of the soil by adding calcium hydroxide, which is a base to it. एग्रीकल्चर में इसका बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है। कभी कभी लिखा हुआ है कि सॉइल जो है वो कभी कभी एसिडिक हो जाती है, ओवर फर्टिलाइज़र के यूज़ से एसिडिक हो जाती है, या एसिड रेन हो गया इससे सॉइल एसिडिक हो जाती है। तो सॉइल जब एसिडिक हो जाएगी तो क्रॉप का प्रोडक्शन कम होगा, सॉइल सीड का जर्मिनेशन कम होगा और ओवरऑल क्रॉप यील्ड पे इफेक्ट पड़ेगा। तो सॉइल की इस एसिडिटी को हम कैसे दूर करते हैं? हम बेस ऐड कर देते हैं सॉइल में। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस इसमें लिखा हुआ है, इसको हम ऐड कर देते हैं तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड के इफ़ेक्ट को और हमारी जो सॉइल है वो फिर से क्या हो जाती है? स्ट्रॉन्ग हो जाती है, प्रोडक्टिव हो जाती है। एक और इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं। इन एंट एंड बी बाइट, द स्टिंग ऑफ एंट एंड बी कंटेन फॉर्मिक एसिड. दिस कैन बी क्योर्ड बाय रबिंग soap, which is base. The acid-base neutralization reaction takes place, which result in reduced pain and healing. तो जो एंट्स और बीज की स्टिंग होती है, एंट्स और बीज की स्टिंग होती है, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, एसिड। तो इसलिए अगर कभी बी या एंट आपको बाइट कर ले तो उस जगह पे अगर कोई भी बेस लगाएंगे तो आराम मिलेगा। आज ये बात सीख लो तुम लोग बच्चों। उस जगह पे कोई भी बेस लगाएंगे एंट स्टिंग पे, एंट की बाइट करने पे, तो लाभ होगा। बेस आपके घर में तमाम बेसेज हैं, आपको पता नहीं है। एक बेस है, कोई भी सर्फ आपके घर में अगर है, कोई भी सर्फ, हाथी छाप, बंदर छाप, कुत्ता छाप, कोई भी सर्फ एक्सेल, व्हील, कुछ भी, उसको थोड़ा सा अगर अप्लाई करेंगे एंट स्टिंग की जगह पे तुरंत रिलीज मिलेगी। वो भी नहीं है, चलिए पेस्ट है आपके पास, कोई भी पेस्ट, कोलगेट, भालू, कुछ भी, उस पेस्ट को अप्लाई करेंगे, लाभ मिलेगा, क्योंकि फॉर्मिक एसिड होता है एंट की स्टिंग में। ये एक एप्लीकेशन हो गया। इसके अलावा ढेर सारे एप्लीकेशंस लिखे हुए हैं। एक और लिखा हुआ है, इन स्पेसशिप, एस्ट्रोनॉट इन स्पेसशिप एंड सबमेरीन्स, इन द सबमेरीन यूज बेस लिथियम हाइड्रोक्साइड टू न्यूट्रलाइज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एग्जॉस्ट। जो कार्बन डाइऑक्साइड एग्जॉस्ट उनका होता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए ये क्या रखते हैं वहाँ पे? लिथियम हाइड्रोक्साइड रखते हैं। दीज आर वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट बाय एसिड्स एंड बेसिस, एंड योर चैप्टर इज ओवर नाउ। These are applications, various applications written in your book, and now your chapter completed. ठीक है, आप ये चीज़ अपने से पढ़ेंगे बच्चों। लेट्स सी अगेन, इसको आप खूब थॉरली पढ़ लेंगे। कुछ भी नहीं है, चैप्टर हम लोग एंड कर चुके हैं, उसी के बारे में लिखा पढ़ेंगे। और हम आपको PDF प्रोवाइड करेंगे बुक एक्सरसाइज का और इसके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का इसके बाद। और अब आपके एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एग्ज़ाम। आई विल प्रोवाइड यू बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर टुडे नाइट। क्लियर? दिस इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। स्टे होम, बी सेफ। थैंक यू क्लास 7।